افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے. یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا ضامن ہے. ہمارا عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کی کڑی ہے. عزم استحکام کسی ایسے بڑے اور نئے آپریشن کا نام نہیں. غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں، ان کی معاونت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی. قوم میں انتشار، بے یقینی اور مایوسی پھیلانے والے تمام عوامل کو ہم اپنی ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر شکست دیں گے. سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ ہونے دیں. قوم میں بے یقینی اور انتشار پھیلانے والوں کو ایک ہو کر شکست دیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوم دفاع شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب. کہا ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے ان کی سرکوبی کریں گے. افواج پاکستان اور عوام کا دلی رشتہ دشمن کو شکست دینے کی ضمانت ہے. ملک دشمنوں کے عزائم کبھی پورے نہیں ہوں گے. عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں. کسی کو اس کے علاقے سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. دہشت گردی کے پھیلاؤ میں غیر ملکی قوتوں کو بابر کرانا چاہتا ہوں. قوم اور مسلح افواج سالمیت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں. جنگ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی. جنوبی ایشیا کا پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے حل میں مضمر ہے. کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں. جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان کے مکمل خاتمے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے. اپنے ان عظیم ماؤں کے آنسوؤں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان کے بہادر بیٹوں کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے. فتنہ الخوارج کے خاتمے تک پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے آپریشن جاری رکھیں گے. وزیر اعظم کا یوم دفاع اور شہداء کی مرکزی تقریب سے خطاب. کہا یہ دن ہمیں ان بہادر سپوتوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے وطن کی آزادی اور تحفظ کی خاطر جانیں قربان کی. شہداء کی عظیم ماؤں کے آنسوؤں کی قسم، ان کے پیاروں کی قربانی کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ملک کی خاطر ذاتی مفادات اور خواہشات کو قربان کریں. کسی کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں، لیکن ملک دشمنوں کا سر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. قوموں کی تقسیم ریاست کو کمزور کرتی ہے. خوشحالی کی منزل امن سے ملتی ہے. جی ایچ کیو راولپنڈی میں یوم دفاع اور شہداء کی مرکزی تقریب. مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور دعا کی. تقریب میں وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اعلیٰ عسکری قیادت اور شہداء کی فیملیز کی شرکت. تقریب میں شہداء کے اپنے اہل خانہ کے نام پیغامات پڑھ کر سنائے گئے. نامور گلوکار شفقت امانت علی خان اور ساحر علی بگا نے ملی نغمے پیش کیے. بچھڑ جانے والے پیاروں کو یاد کر کے تقریب میں شریک بہت سی آنکھیں نم ہو گئیں. ملک بھر میں یوم دفاع اور شہداء بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب. گورنر سندھ کامران ڈسوری اور کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی مزار قائد پر حاضری. لاہور میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا نے مزار اقبال پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی. نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب ہوئی. لاہور میں میجر شبیر شریف شہید اور گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزارات پر پاک فوج کے دستوں نے سلامی پیش کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل صرف جمہوریت میں ہے. سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان ایٹمی طاقت ہے. معاشی حالات ٹھیک ہوں تو ہم عالم اسلام کو لیڈ کر سکتے ہیں. لندن میں یوم دفاع کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان معاشی قوت بنے گا. لوگوں نے باتیں کی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، لیکن ہم نے چیزوں کو سنبھالا اور درست کیا. 6 ستمبر نہ ہوتا تو ہم 14 اگست نہ بنا پاتے. گورنر سندھ کامران ڈسوری کا یوم دفاع اور شہداء کے حوالے سے تقریب سے خطاب. کہا ملک و قوم کے لیے شہداء کی قربانیاں لازوال ہیں. 9 مئی جیسے واقعات ہوں گے تو شہداء اور ان کے اہل خانہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کوئی اس ماں کا قرض اتار سکتا ہے جس نے ہمارے بچوں کے لیے اپنا لخت جگر قربان کر دیا؟ خدا را 9 مئی جیسی حرکتیں دوبارہ نہ کی جائیں. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے ہم میں سے نہیں.
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की। कहा, अफवाज पाकिस्तान जागती हैं तो हम सुकून से सोते हैं। उन वालिदैन को सलाम जो अपने लख्तो जिगर वतन पर कुर्बान कर देते हैं। मुल्क का अंदरूनी दिफा हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। शोहदा हमारे लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। उनकी इज़्ज़त की हिफाजत, उनकी कुर्बानी का एहतराम हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। और आज मैं शोहदा की माओं को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। चंद से मेरी मुलाकात भी हुई है। नाकाबिल तस्खीर जज्बा है जब एक माँ अपने बच्चे को मैदान जंग में भेजती है, मुल्क की हिफाजत के लिए भेजती है, तो वो ये जानती है कि वो उसको कहाँ भेज रही है और उसके साथ क्या हो सकता है। कोयटा में यादगार शोहदा पर यौम दिफा की तकरीब, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान ने फातह ख़ानी की और फूल चढ़ाए। पेशावर में कोर कमांडर समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। जनूबी वज़ीरिस्तान के दारुल हुकूमत वाना में IGFC खैबर पख्तूनख्वा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली तकरीब में गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने शोहदा के लाहिकीन और हाजिर सर्विस एहलकारों में मेडल्स तकसीम किए। गवादर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब, वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत। वफाकी वज़रा की शोहदा के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात और इजहार यकजहती। ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी, हसन इकबाल, अता तारड़, अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल शोहदा के घर पहुंचे। कहा, वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे सरों के ताज हैं। शोहदा के अहले खाना अकेले नहीं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। हमें अपने शोहदा पर फख्र है, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। That Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a multinational maritime coalition. It has instituted national maritime security patrols under its national mandate that reflects our resolve and commitment to providing a conducive maritime environment in the region. पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज शामिल PNS बाबर और PNS हनीन पाक बहरिया के बेड़े का हिस्सा बन गए। इंडक्शन तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। जहाज़ों की शमूलियत से इस्ताहकार में इजाफा होगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना है कि दोनों जहाज बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस की सलाहियत रखते हैं। 6 सितंबर हमारे दिफा और इत्तेहाद का दिन है। The 6th of September is commemorated as a symbol of national resolve, resilience, and unity, marking the occasion when our armed forces, alongside the people of Pakistan, bravely repelled the external aggression. In the same spirit, the induction of these platforms will significantly enhance the combat capabilities of Pakistan Navy and strengthen our maritime defense. जो इस्लाम को और दीन को इस्तेमाल करके लोगों को बरगला के दहशतगर्दी करवा रहे हैं या कर रहे हैं, उनका रास्ता बंद किया जाए। जो भी शख्स या तंजीम स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाती है वो दहशतगर्द है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाला दहशतगर्द है। आज मौका है, हथियार डाल दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशकश। मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा से मुलाकात। कहा, तमाम उलमा मुश्तरका पैगाम दें कि इस्लाम के नाम पर कत्ल जायज़ नहीं। लोगों को बरगला कर दहशतगर्दी करने वालों का रास्ता बंद करना है। अगले चंद रोज़ में तमाम सूबों में जाएंगे। वज़राए आला से अलग अलग मुलाकात करेंगे। दहशतगर्दों को मजबूत पैगाम देना है कि हम मुत्तहिद हैं। वज़ीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन ने कहा कि अपनी आने वाली नस्लों को आग और बारूद में चौंकने की इजाज़त नहीं देंगे। 7 सितंबर दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब, जब पाक फजाइया के शाहीन बुज़दिलाना वार करने वाले हमसाए पर बिजली बंद कर झपटे। अमरीकी साख्ता लड़ाका तैयारे F-86 स्वैबर ने कई भारतीय जहाज़ों को धूल चटाई। फतह की यादगार लड़ाका तैयारा मुल्तान के कासिम पार्क की सीनत। शहरी जंगी तैयारे के साथ तस्वीर या सेल्फी बनाना फख्र की बात समझते हैं।
जंगे सितंबर में पाक फजाइया ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। मोहम्मद महमूद आलम अल मारूफ MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 जंगी तैयारे गिराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका शानदार कारनामा आज तक नाकाबिले तस्खीर। माल रोड लाहौर पर नस्ब MM आलम का तैयारा अहले वतन के लिए आज भी दादे शुजात देता है। 1965 की जंग में 7 सितंबर का दिन पाक फजाइया के नाम रहा। बहादुरी, जुरत और बेमिसाल कुर्बानी की दास्तान लिखने वाले सपूतों की याद में पाक फजाइया ने खुसूसी नगमा जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी। तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर। फैसले में कहा बानी PTI साबित नहीं कर सके कि तरामीम गैर आईनी है। फैसला 5-0 से सुनाया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में लिखा कि नैब का कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के बाद बनाया। मुशर्रफ ने आईनी जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। इन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आईनी इक़दाम की तौसीक नहीं की। बेहतर है कि इदारे फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान आवाम की खिदमत करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। फैसला हुआ है खान साहब का तोशाखाना 2 नंबर केस जो है अब वो नेब के दायरे इख्तियार से बाहर है, वो नहीं चल सकता। कैबिनेट का कोई भी डिसीजन जो है वो अमीनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ नेब नहीं है। अगर कैबिनेट ने एक फैसला किया तो नेब उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। नैब तरामीम पर तनकीद करने वाले भी बड़े बेनिफिशरी निकले। बानी PTI का तोशाखाना 2 केस अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले काबीना के फैसलों पर भी नई तरामीम के तहत नैब कानून लागू नहीं होगा। अल-कादिर ट्रस्ट केस भी अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अल-कादिर ट्रस्ट केस भी मेरिट पर खत्म हो जाना चाहिए। शिबली फराज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को NRO 2 करार दे दिया। कहा कानून साजी आवाम के लिए नहीं चोरों के लिए की जा रही है। ये बिल सेनेट में आया। सेनेट में ये कमेटी को रेफ़र किया गया, इंटीरियर की कमेटी, और उस कमेटी में इस पे बाकायदा डिबेट हुई, रिपोर्ट पेश की गई। जो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट देखनी थी नहीं थी देखनी, इनके मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद सेनेट ने ये बिल पास किया, यहाँ पे ट्रांसमिट किया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। ताहयात नाअहली ड्रैकोनिन कानून था। ऐवान ने पुरअमन इज्तिमा और अमन अमा बिल भी मंजूर कर लिया। इजलास में वज़रा की अदम शिरकत पर स्पीकर अयाज सादी का इजहार बरहमी। इजलास शाम 5 बजे तक मुलतवी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट के लिए बिजली की यूनिट कीमत में ₹1.75 इजाफा कर दिया। सारिफीन से 3 माह में 43 अरब रुपए की इजाफी रकम वसूली की जाएगी। सेमाही एडजस्टमेंट सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूल की जाएगी। हुकूमत शरह सूद को नीचे लेकर आए, ये 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बैंक से हुकूमत को 22% सूद पर कर्जा दे रहे हैं। तनख्वाहदार तबके पर 40% टैक्स लगा दिया गया। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख बोले शरह सूद कम होने से हालात बेहतर होंगे। हमारे साथ 150 चैम्बर्स हैं, हमारी आवाज को सुना जाए। रवां साल अमेरिका में स्कूल फायरिंग का 46वां वाकया। रियासत बाल्टीमोर के स्कूल में झगड़े के दौरान फायरिंग से तालिब इल्म हलाक। चंद रोज कबल अमरीकी रियासत जॉर्जिया के स्कूल में फायरिंग से 4 अफराद हलाक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। स्कीम से कानूनी तौर पर अमारात में दाखिल होने के बाद वीज़ों की तजदीद न कराने वाले गैर मुल्की फ़ायदा उठा सकेंगे। वीज़ा इम्नेस्टी स्कीम सेंटर्स कायम। तारिकीन वतन बगैर किसी जुर्माने के वतन वापसी का परवाना ले लें या नौकरी का सबूत दिखाकर अपने क़याम को कानूनी बना सकते हैं।